It is a helium neon laser. So first of all, we have to understand the basic construction of the helium neon laser. And now that topic is very important from the unit of forthright in laser unit. Okay, so what is the basic block diagram of the helium neon laser? So we have, that is the block diagram of the helium neon laser. Okay, so in that diagram you see that is the helium neon laser tube. Okay, and in that tube the helium and neon atom are mixed up in the ratio of 90% of helium atom plus 10% of neon atom. Okay, and the external power supply which is connected to the laser tube, the positive power supply is connected to the surface of the laser tube, and negative power supply is connected and inserted into the helium neon laser tube. Okay, so as we know, the basic function of the laser in the construction form is there are three parts. First is active region. So in helium neon laser, that is the active region. Okay, second is the pumping source, and helium neon laser, in helium neon laser here we are using the pumping source as a electrical pumping. Okay, by connection the external power supply which is about 1000 volt, okay, to the laser tube. And now third component is the optical resonator cavity, or that optical resonator cavity is the combination of the two mirrors. So here one mirror is placed here, which is the one transmitting mirror, and another mirror is placed here, which is the 100% reflecting mirror. It means the all photon will be reflected from that mirror toward the 1% transmitting mirror. Okay, and now here the output coupler which is connected to the 1% transmitted mirror. So the laser beam will be produced through this output coupler or 1% transmitting mirror. Okay, so this is the basic block diagram of the helium neon laser. As we are using in our laboratory also, you see in the optical fiber experiment. Okay, so in that experiment we are using the helium neon laser. So practically what is the inside, or you can say what is the construction inside the laser tube as we are using in our laboratory. So that thing we can understand from this diagram.
So here, as we are using in our laboratory the helium neon laser, if you see in that diagram in helium neon laser, okay, so it is a cylindrical tube, okay, and it has the length about 10 centimeter to 100 centimeter. So we use like that the length, and the diameter of this laser tube is almost 2 micrometer or 210 micrometer. Okay, so it has a cylindrical shape of the laser tube. Got it my point? And now here, if you see here, that is the active region portion. Okay, so this one active region portion, the helium and neon are mixing in that laser tube. Okay, so the helium atom are the 90% and neon atom is the 10%. Okay, so यहाँ पर अपन इस रेशियो में हीलियम और नियोन एटम को मिक्सअप करते हैं इस लेज़र ट्यूब के अंदर. ओके, सो ये लेज़र ट्यूब है और इस लेज़र ट्यूब में ये एक्टिव रीजन की तरह काम कर रहा है. और इसमें एक्टिव रीजन क्या है, जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं. तो मटेरियल क्या कौन सा यूज़ कर रहे हैं इसमें, हीलियम और नियोन एटम. तो दैट हीलियम नियोन एटम विल इज कॉल्ड द एक्टिव मटेरियल. ओके, सो ये एक्टिव मटेरियल है, तो ये एक्टिव रीजन हो गया. तो यहाँ पर ये एक्टिव रीजन है जो कि हीलियम और नियोन एटम अपन यूज़ कर रहे हैं 90 to 10% रेशियो में. व्हाट इज माय पॉइंट? ओके, सो नेक्स्ट कि ऑप्टिकल रिजोनेटर कैविटी की तौर पर हम जो 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर यूज़ करते हैं, वो जो रियल प्रैक्टिकली अपन यूज़ करते हैं हीलियम नियोन लेजर में, उसमें यहाँ पर है. ओके, यहाँ पर 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर है. यहाँ जो ये ब्लैक सीट की फॉर्म में अगर आप देख रहे हैं, तो इस ब्लैक सीट की फॉर्म में यहाँ पर देखिए ये 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर है. तो यहाँ पर बिल्कुल एंड पोर्शन ऑफ द लेजर ट्यूब. सो द 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर इज प्लेस्ड एट द एंड पोर्शन ऑफ द लेजर ट्यूब. ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो है कि 1% ट्रांसमिटिंग मिरर. और 1% ट्रांसमिटिंग जो मिरर है वो फ्रंट सरफेस पे होता है. जो लेजर ट्यूब का फ्रंट सरफेस है वो वहाँ पर 1% ट्रांसमिटिंग. तो यहाँ पर ये 1% ट्रांसमिटिंग मिरर अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं. ओके, व्हाट इज माय पॉइंट? सो नाउ नेक्स्ट जो है वो पावर सप्लाई, एक्सटर्नल पावर सप्लाई अपन यूज़ करते हैं. तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई इसमें कनेक्ट करते हैं. तो पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सरफेस से कनेक्ट होता है. तो यहाँ पर जो है वो ये वायर जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का है, एनोड का है, जो कि इस लेजर जो ट्यूब है, ये लेजर ट्यूब है, इसकी सरफेस से कनेक्ट है. ओके, और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जो कैथोड है, तो दैट नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज इंसर्टेड इनटू दिस ट्यूब. ओके, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो लेजर ट्यूब में इंसर्ट रहता है. और दैट नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कंसिस्ट ऑफ द मेटल पिन. गोट इट माई पॉइंट? तो ये एक मेटल पिन की होती है और ये इसमें जो है लेजर ट्यूब के अंदर इंसर्ट होती है, लेजर ट्यूब के अंदर इंसर्ट होती है. ओके, तो ये यहाँ पर अपन जो है वो कैथोड और एनोड कनेक्ट करते हैं. जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई है ये इस प्रकार से ये एक्सटर्नल पावर सप्लाई है जो इसमें कनेक्टेड है. ओके,
लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड वो इंसर्ट होता है। ओके, तो दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ तो यहाँ से फिर ये लेज़र बीम प्रोड्यूस होती है जो कि वन ट्रांसमिटिंग मिरर है, तो यहाँ से लेज़र बीम प्रोड्यूस होती है। ओके, सो दैट इज़ द लेज़र बीम फ्रॉम दैट 1% ट्रांसमिटिंग मिरर। ओके, सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द हीलियम नियॉन लेज़र। ओके, सो next is the working process. Okay, so we have to understand the energy level diagram of the helium atom as well as the neon atom. Okay, एंड सेकंड थिंग जो है वो यहाँ पर अपन जो हीलियम और नियॉन एटम जब लेज़र ट्यूब में मिक्स करते हैं और एक्सटर्नल पावर सप्लाई जब आप कनेक्ट करते हैं, ओके, तो फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो है जैसे कि ये इलेक्ट्रोड है, ओके, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ओके, और इस लेज़र ट्यूब में हीलियम और नियॉन जो है वो हीलियम और नियॉन के गैस एटम है। ओके, अब यहाँ पर आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं, तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई कनेक्ट होने से जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है विच इज इंसर्टेड इनटू दैट गैस एटम। ओके, सो इट विल बी डिस्चार्ज into the gas atom. Okay, so discharge, it means when you switch on of the external power supply, so that energy from the negative electrode, that energy transfer into the gas atom. ओके, तो ये एनर्जी जैसे ही गैस एटम में ट्रांसफ़र होती है तो हीलियम एंड नियॉन गैस एटम विल बी आयनाइज्ड। ओके, गॉट इन माय पॉइंट, विल बी आयनाइज्ड। आयनाइड मीन्स हीलियम और नियॉन जो एटम है वो प्लस पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो दैट गैस आइटम, सम ऑफ द गैस आइटम, नॉट ऑल, तो सम ऑफ द गैस आइटम विल बी आयनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स। ओके, तो यहाँ पर हम जो है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई कनेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। Okay, so what will be happen when you connect the positive and negative electrode to the laser tube? So positive ions, these positive ions will be moved toward the negative electrodes. Got it my point? जितने भी पॉजिटिव आयन्स हैं, जो आयनाइजेशन प्रोसेस हैं, जो आयन बने हैं, तो वो पॉजिटिव आयन्स सारे के सारे वो किधर मूव करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। और जो नेगेटिव आयन्स हैं, ओके, और नेगेटिव जो आयन्स हैं वो जो है वो किधर मूव करेंगे, नेगेटिव आयन्स मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये जो नेगेटिव आयन्स है, दीज नेगेटिव आयन्स आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द एक्सटर्नल पावर सप्लाई। सो व्हेन यू अप्लाई द एक्सटर्नल पावर सप्लाई to the helium neon laser tube, okay, so that is the first process, वर्किंग प्रोसेस ऑफ द हीलियम नियॉन लेजर। ओके, तो ये जैसे ही आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई अप्लाई करेंगे तो ये आयनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इन माय पॉइंट? नाउ सेकंड जो प्रोसेस है इसमें, आफ्टर दैट आयनाइजेशन प्रोसेस जो नेगेटिव आयंस है, ओके, हीलियम और नियॉन एटम, इनमें से सबसे लाइटर एटम कौन सा है? हीलियम एटम है। Got it my point? According to you see, according to the periodic table, okay, तो हीलियम एटम जो है वो लाइटर है। तो दीज नेगेटिव आयंस, जो ये नेगेटिव आयंस जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, ये हीलियम एटम के साथ इंटरैक्ट करेंगे। ओके, तो दैट नेगेटिव आयंस विल बी कोलाइड विद द हीलियम एटम बिकॉज हीलियम एटम इज लाइटर देन द नियॉन एटम। तो यहाँ ये जो नेगेटिव आयंस हैं, ये नेगेटिव आयंस हीलियम एटम के साथ कोलिजन करेंगे। कोलिजन इन द सेंस कि नेगेटिव आयंस विल बी ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द हीलियम एटम। ओके, तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो हीलियम एटम क्या होगा, हीलियम एटम विल बी द एक्साइटेड। गॉट इट माय पॉइंट? तो हीलियम एटम विल बी एक्साइटेड। तो फर्स्ट प्रोसेस में हीलियम एटम एक्साइटेड होगा, ओके, एंड आफ्टर दैट नियॉन एटम विल बी एक्साइटेड through the
एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हीलियम एटम टू द नियोन एटम। तो ये जो है पहले हीलियम एटम एक्साइटेड होगा, फिर नियोन एटम एक्साइटेड होगा, और इसको अपन एक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस वन हीलियम एटम विच इज द एक्साइटेड प्लस ग्राउंड स्टेट नियोन एटम, okay, and now that helium atom will be transferred its energy to the neon atom. Okay, so after the process what will be happen, the neon atom will be excited and helium atom will be the grounded. Okay, so after the interaction, after the process, that thing will be happen. Got it my point? So that is the first reaction of the helium neon laser tube. Okay, so thank you very much.